welcome to my students, my viewers, to the new class. Actually, we are going to start the consumer theory. In the consumer theory, earlier we have discussed so many topics regarding the utilization and supply and demand theory. So we must have to keep all these concepts in our mind. So we move on for regarding the consumer theory. Consumer theory, that's mean in which first of all we will trying to discuss about the consumer preferences. And when we were discussing about the consumer preferences, so we must have to have some assumptions. These are very essential assumptions, and we will trying to discuss, we will trying to explain that what are the assumptions on which we can define the well-behaved preferences of the consumer. कंज्यूमर प्रेफरेंसेस की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, पहले इस बात को समझने की कोशिश करते हैं. यू नो डैट के इन द कॉन्सेप्ट ऑफ द यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन हमने ऑब्जर्व किया कि एवरी ह्यूमन, एवरी पर्सन वांट सम गुड्स एंड सर्विसेज. व्हाई? एक्चुअली गुड्स एंड सर्विसेज बेसिकली आपको सेटिस्फेक्शन दे रही हैं, एक अमाउंट ऑफ सेटिस्फेक्शन दे रही हैं. आप कह सकते हैं कि मुझे इतनी सेटिस्फेक्शन वहाँ से लेट सपोज मुझे मिल रही है. तो इसका मतलब ये कि पीपल्स रिक्वायर्ड, डिमांडेड द गुड्स एंड सर्विसेज. जब हम बात कर लेते हैं कि गुड्स एंड सर्विसेज हैं, सो नेक्स्ट स्टेप ये आता है कि हमारे इन्वायरमेंट में वी हैव सो मेनी गुड्स, सो मेनी सर्विसेज, एंड इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन कि वो उन्हीं गुड्स को किस तरह से यूटिलाइज करें, किस तरह से कंज्यूम करें. सो इस कंजम्पशन को, इस कंजम्पशन पैटर्न को, इस कंजम्पशन प्रेफरेंसेस को वी वांट टू नो दैट व्हाट आर द मैकेनिज्म्स will be used to define the consumer preferences. So for the very simple, we are taking a basic example of the wheat and rice. It is a very elementary example because we want to learn the concept of the preferences, and we will trying to discuss some assumptions. So पहले हमारे दिमाग में एक concept हो कि हम क्या कर रहे हैं. We are saying that there are so many goods, and we all are the human, and we are using in a different combination the goods. लेकिन इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम एक अजम्पशन कर लेते हैं कि हमारे पास 2 गुड केस है, और 2 गुड्स मीन दैट्स मतलब एक वीट है और एक राइस है. When we will learn the 2 good case, so we can generalize the same case to the whole commodities, whole goods. The concept will be the same one. First of all, we learn that we have wheat and we have rice. So अगर हम कहते हैं कि एक पर्सन है, उसने डिफरेंट कॉम्बिनेशंस के साथ वीट एंड राइस लिया, या मार्केट में लोग जो हैं वो डिफरेंट कॉम्बिनेशन के साथ वीट एंड राइस लेते हैं, सो उनको डिफरेंट यूटिलिटीज़ मिल सकती हैं. आई एम नॉट सेइंग कि उनको डिफरेंट मिलेंगी, आई एम सेइंग कि उनको सेम भी मिल सकती हैं, डिफरेंट भी मिल सकती हैं, बट उनकी यूटिलिटीज़ क्या होंगी हम जानने की कोशिश करते हैं. लेट्स सपोज अ पर्सन इज टेकिंग द कॉम्बिनेशन ए, in which he or she is taking 2 kg of wheat and 3 kgs of the rice for the weekly consumption, let's suppose. इसी तरह से एक कॉम्बिनेशन और बना, और डेफिनेटली जब वो इस कॉम्बिनेशन को यूज़ करेंगे तो उन्हें कोई ना कोई सेटिस्फेक्शन मिलेगी. the whole game is moving around the satisfaction, that's mean moving around the utilities. So consumer preferences are needed for the explanation of the utility, कि हम preferences को बेस बनाते हुए utility कैसे ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे. Similarly combination B, अगर उसको 1 kg of wheat ले लेता है, 5 kg और राइस ले लेता है, तो we are taking these different combinations example के लिए. The consumer are using these goods, and we are assuming that the consumer behavior is rational. So very important term of the belongs to the economics is rationality. We assume that the consumers are rational,
if they are rational, so we will assume some basic assumptions. What are these assumptions? Number one, हम ये चाहेंगे कि कंज्यूमर अगर रिजनेबलनेस मीन रैशनैलिटी को फॉलो करता है तो उसको वेल बिहेव्ड होना पड़ेगा, और वेल बिहेव्ड होने के लिए उसकी पहली असम्पशन क्या है? नंबर वन इज कंप्लीटनेस। अब इसको डिफाइन करते हैं। कंप्लीटनेस मीन एक्चुअली कंज्यूमर हैज़ एबिलिटी टू कंपेयर द गुड्स, कंपेयर द थिंग्स। वो गुड्स को कंपेयर कर सकता है। लेट्स सपोज वो कह सकता है कि मुझे जो कॉम्बिनेशन ए है, आई विल प्रेफर द कॉम्बिनेशन ए। लेट्स सपोज, मैं अभी हम ये बात नहीं कर रहे कि वो क्यों और कैसे, जिससे एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि लेट्स सपोज कंज्यूमर विल प्रेफर ए टू बी। लेट्स सपोज वो 2 किलो राइस, 2 किलो वीट गंदम और 3 किलो राइस के जो कॉम्बिनेशन है उसको प्रेफर करेगा 1 किलो वीट और 5 किलो राइस से। ये उसकी प्रेफरेंसेस है, लेकिन कंप्लीटनेस मीन उसके अंदर कंपैरिजन की एबिलिटी मौजूद है। सो दैट्स मीन विल प्रेफर ए टू बी आर बी टू ए, या वो बी को प्रेफर कर लेगा ए पे, या ये भी हो सकता है कि वो ए और बी के दरमियान, तो ए और बी के दरमियान अगर उसने इंडिफरेंट रहना है, दैट्स मीन कि वो कहता है कि मुझे आप कंजम्पशन मॉडल ए दे दें या बी दे दें, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे ए की जितनी यूटिलिटी मौसूल होगी, या मैं ए को ज़्यादा प्रेफर कर लूँगा बी पे, या मैं बी को प्रेफर कर लूँगा ए पे। सो दिस इज़ द वेरी फर्स्ट अजम्पशन दैट वी आर यूजिंग, दैट कि कंज्यूमर कंपेरेबिलिटी की पोजीशन अपने अंदर रखता है। नाउ वी डिस्कस दैट कि व्हाट इज़ द नेक्स्ट अजम्पशन दैट वी आर यूजिंग, दैट कि अब हमारा कंज्यूमर जो है वो रैशनल हो, वेल बिहेव्ड हो। सो सेकेंड थिंग वी ऑब्जर्व दैट इट इज़ बेसिकली the reflexivity is little bit complex concept, लेकिन हमें इसको समझने की ज़रूरत ये है कि we are saying that the consumption bundle A is as good as itself। अभी हम दूसरे कंजम्पशन बंडल की बात नहीं कर रहे, एक्चुअली वी आर सेइंग दैट कि उसका जो सेम कंजम्पशन बंडल है, हम इंडिफरेंट पे तो ये बात करते हैं ना कि ए और बी इंडिफरेंट है, मतलब ए ले लूँ या बी इज़ अनदर कंजम्पशन बंडल वो ले लूँ और मेरी सेटिस्फेक्शन सेम रहे। लेकिन रिफ्लेक्सिविटी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है। वो कहता है कि एक सेम कंजम्पशन बंडल अपने आप से भी कंपेयर हो सकता है और उस कंजम्पशन के अंदर वो एज गुड एज इटसेल्फ पाया जाएगा। अब इसको वेरी सिंपल वर्ड्स में समझने की ये कोशिश करते हैं कि लेट्स सपोज द कॉम्बिनेशन ऑफ द ए 2 kg वीट 3 kg राइस, और अगर सेम क्वालिटी एंड सेम कॉम्बिनेशन हमें दूसरा एक बंडल और मिले इसी तरह का, तो कंज्यूमर उसके अंदर फ़र्क ना करे। एक और कॉम्बिनेशन ऑफर हो जिसके अंदर ये सेम क्वालिटी और सेम अमाउंट्स हों, तो हम कंज्यूमर उसके अंदर ये ना कहे नहीं मुझे ये वाला 2 किलो गंदम और 3 किलो चावल वाला चाहिए, ये वाला 2 सेम क्वांटिटी वाला नहीं चाहिए। दैट्स अ पॉइंट। इसका एक और एग्जांपल है कि अगर 1 kg राइस का एक पैकेट बना हुआ है और आप एक मार्ट में जाते हैं और वो उसकी प्रेफरेंस है, वहाँ पे आप जब मार्ट में जाते हैं तो आप देखते हैं कि 1 kg राइस के बहुत सारे पीसेस एक साथ रखे होते हैं, पैकेट्स।
इसी तरह से आप कहते हैं कि व्हेन यू आर गोइंग टू द मार्ट एंड टू टेक द सोप एंड देयर आर सो मेनी सोप्स आर देयर, at least the soap of the same companies are showing in the one shelf. So consumer is indifferent and as good as itself that कि वो अगर सेम सोप उनमें से कोई सा भी एक उठा ले, वो नहीं कहे, वो कहे नहीं ये वाला पैकेट छोड़ के मुझे ये दे दें, ऐसा नहीं होगा. So mean consumer is reflexive. That's mean a bundle is as good as itself. और यानी कि मैंने उसको आपको बड़ी एग्जांपल दी कि सेम गुड होगी, वो उनमें से इस तरह की कोई सी भी गुड हो वो उनमें से लेना पसंद करेगा, नंबर 1. नंबर 2 कि वो उसको एक सेटिस्फेक्शन दे रही होंगी, ये नहीं कि वो बस उसको ले रहा है, नो, उससे इसमें सिग्निफिकेंटली सेटिस्फेक्शन उसको उस गुड से मिल रही होगी. So reflexivity. The third assumption is that it's very important, transitivity. So transitivity is very important. It's basically first one was for comparison, second was showing that the consumer behavior should be reflexive, and the third one is the transitivity is used for the basically ranking. The consumer has a rational behavior and he or she knows that what is the rank of that bundle, what is the rank of the other bundle, और मुझे उसके अंदर फ़र्क पता है. Let's suppose, इसकी बड़ी एग्जाम्पल बड़ी अच्छी दी आती है कि let's suppose अगर A bundle the consumer will prefer A to B, let's suppose, and another behavior is that he prefer B to C. So A is better than B, कंज्यूमर के लिए A ज़्यादा अच्छा है, एंड देन उसी कंज्यूमर के लिए एक और कॉम्बिनेशन C सामने आया तो वो कहता है हाँ लेकिन B मुझे C से ज़्यादा अच्छा लगता है. So if A is better than B and B is better than C, so it is very simple, the A will also be preferable to C. सीधी सी बात है ना कि आपने कहा कि मुझे A B के मुकाबले में ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो इसका मतलब ये कि B से मिलने वाली यूटिलिटी कम है और A से मिलने वाली यूटिलिटी कंज्यूमर के लिए ज़्यादा है. लेकिन B से भी जितनी वो यूटिलिटी ले रहा है वो ज़्यादा है C से, तो ये तो लाजमी सी बात है कि A की यूटिलिटी C से भी ज़्यादा होगी, क्योंकि वो पहले ही डिक्लेयर कर चुका है कि B अगर ज़्यादा है और B से ज़्यादा A है. सो if this behavior is following that, so we consider the assumption of the transitivity is satisfied. And from the basic assumption, the last assumption is that there are so many assumptions more, but we are just discussing about the basic assumptions. So very essential for the rationality purpose, for the well-behaved purpose, these 4 assumptions. Then fourth one is basically monotonicity. Is monotonicity. Monotonicity means that it's very simple word is that इस assumption को दूसरे आसान लफ्ज़ों में यूँ भी कह सकते हैं कि more is preferred to less. More is preferred to less. So हमेशा ज़्यादा गुड लेस गुड पे प्रेफर की जाएगी. ये बहुत कॉम्प्लेक्स अजम्पशन है, वैसे आती बेसिक में है, लेकिन हमें इसको जब हम इसको डिफरेंट एंगल से पढ़ते हैं तो हमें इसको बड़ा समझ में आता है कि ये अजम्पशन इतनी एसेंशियल है कंज्यूमर बिहेवियर को डिफाइन करने के लिए कि इट्स वेरी सिंपल, द मोर इज़ प्रेफर्ड टू लेस. लेकिन कैसे, इसको हम इस मदद से भी समझेंगे, लेकिन पहले हम इसको देख लेते हैं इस तरीके से कि हम ये कहते हैं कि मोर प्रेफर्ड टू लेस का मतलब ये है कि अगर एक कंज्यूमर 3 किलो राइस कंज्यूम कर रहा है
और उससे उसे कोई सेटिस्फेक्शन मिल रही है जिसे हम कहते हैं U1, सो हम 100% श्योर हैं कि अगर उसको 3 किलो से बढ़ा के आप उसका 4 किलो कर दें तो उससे उसको जो सेटिस्फेक्शन मिलेगी वो मिलेगी U2, और जब उसको U2 मिलेगी तो हम कहेंगे कि U2 बड़ी होगी U1 से, यानी कि ज़्यादा कंजम्पशन देने पे उसकी सेटिस्फेक्शन में इजाफा होगा। अब क्योंकि ये तो एक सिंगल गुड की बात थी, मोनोटोनिसिटी इज आल्सो ऑब्जर्व्ड इन द कॉम्बिनेशन इन द बंडल, जो कि एक रियल लाइफ एग्जांपल है। आप रियल लाइफ एग्जांपल में एक सिंगल गुड पे डिपेंड नहीं करते या 2 गुड्स पे डिपेंड नहीं करते, आप तो मल्टीपल गुड्स पे करते हैं। सो 2 गुड्स का केस अगर हम समझते हैं तो फिर उसको अगेन जनरलाइज कर लेते हैं। सो मोनोटोनिसिटी में मोर इज प्रेफर्ड टू लेस, नंबर 1, एंड फर्दर एक्सप्लेनेशन इज दैट a combination B is preferable to the combination A when, in which by increasing the one good and not less in the other good. So अब इसको बात को यहाँ समझते हैं कि by increasing in the one good but not less in the other good. सो अगर हम ये कहते हैं कि कॉम्बिनेशन ए में कंज्यूमर को 2 किलो गंदम और 3 किलो चावल दिया जा रहा था, सो ऐसा कौन सा कॉम्बिनेशन है जो मोनोटोनिक ट्रांसफॉर्मेशन रख रहा है? अगर आप कॉम्बिनेशन बी पे आए, सो उसके अंदर राइस की क्वांटिटी को बढ़ा दिया गया है। इसका मतलब ये कि मोर इज प्रेफर्ड टू लेस नहीं है, अभी हमें समझना पड़ेगा। अगर उसकी कॉम्बिनेशन में वीट भी शामिल है तो हमें सिर्फ राइस नहीं वीट भी ऑब्जर्व करना पड़ेगा। तो हमने कहा इंक्रीज इन वन गुड बट नॉट लेस इन द अदर गुड, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि उसकी अदर गुड में लेस किया गया है 2 kg वीट से 1 kg। सो दिस इज मीन कि कंज्यूमर कभी भी इसको डायरेक्टली ये फैसला नहीं कर सकता कि कॉम्बिनेशन बी इज प्रेफरेबल टू कॉम्बिनेशन ए, डायरेक्टली ये बिहेवियर नहीं दे सकता। इसका मतलब ये है कि ये जो हमें नॉलेज आएगी वो आएगी बाय दिस अजम्पशन। इफ द कंज्यूमर बिहेवियर इज फॉलोइंग द अजम्पशन ऑफ मोनोटोनिसिटी, सो दैट्स मीन कि ये बंडल विदाउट एनी अदर इंफॉर्मेशन डायरेक्टली प्रेफरेबल नहीं हो सकता ए से विद द अजम्पशन ऑफ दिस। अगर आप ये अजम्पशन को रूल आउट करेंगे दैट्स मीन कि फिर ये अजम्पशन, अगर वो कंज्यूमर कहता है कि मुझे कंजम्पशन बंडल बी ज़्यादा प्रेफरेबल लग रहा है बंडल ए से, तो वो बेसिकली ये अजम्पशन को वायलेट कर रहा है। बिकॉज कि प्रेफरेबल जब होगा जब वो मोर होगा, तो आप देख रहे हैं कि वो मोर तो है, 3 किलो राइस से 5 किलो हो चुके हैं, लेकिन नॉट लेस इन अदर, उसमें लेस नहीं करना आपको। इसका मतलब ये है कि मोनोटोनिसिटी के अंदर 2 ऑप्शन आ गए, एक चीज़ में इजाफा होगा, दूसरी चीज़ में या तो वही रखें या थोड़ा बढ़ाएं, कमी वाकई नहीं हो सकती। सो अब अगर हम देखें कि एक बंडल डी जिसमें हम देखते हैं कि आपके वीट 2 kg से मूव कर रहे हैं 3 kg पे और राइस 3 kg से मूव कर रहा है 4 kg पे। सो विद द अजम्पशन ऑफ द मोनोटोनिसिटी वी कैन स्ट्रिक्टली से दैट द कंजम्पशन बंडल इज प्रेफरेबल टू कंजम्पशन बंडल डी, बिकॉज उसमें दोनों कमोडिटीज़ में इजाफा वाक़ई हो रहा है। और अगर वो वीट 2 kg के बजाय 2 kg ही रहते एंड देन जस्ट वी इंक्रीज इन द राइस, तो भी ये मोनोटोनिसिटी की अजम्पशन में, वीक अजम्पशन में आ जाती, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि उसकी कंजम्पशन में, उसकी यूटिलिटी में इजाफा हो रहा है। सो वी सम अप आवर लेक्चर, बेसिक अजम्पशन, कंप्लीटनेस, रिफ्लेक्सिविटी, ट्रांजिटिविटी, मोनोटोनिसिटी। वी हैव डिफरेंट कॉम्बिनेशंस। फर्स्ट ऑफ ऑल कंज्यूमर शुड बी कंपेरेबल, वो अपने बंडल्स के दरमियान अपना कंपैरिजन करना जानता हो।
रिफ्लेक्सिव मीन जो बंडल वो यूज़ कर रहा है एज गुड एज इटसेल्फ उसको डिक्लेयर करे, उससे एक स्पेसिफिक सेटिस्फेक्शन ले। पॉजिटिविटी मीन वो रैंकिंग करता हो, अगर वो कहता है कि लेट्स सपोज मुझे ये ए बी से ज़्यादा अच्छा लगता है और बी सी से ज़्यादा अच्छा लगता है, तो ये बात कंफर्म है कि उसको अगर सी दिया जाए तो उसके मुकाबले में वो ए को ही प्रेफर करेगा। एंड द फाइनली इज़ दैट द मोर इज़ प्रेफर्ड टू लेस, द मोर इज़ बेटर, दिस इज़ कॉल्ड मोनोटोनिसिटी। दैट्स मीन if they are consuming different goods and they all are increasing, तो वो एक higher level of satisfaction पे जाएगा। So these are the basic assumptions and I hope that definitely you learned about it. So thank you very much. Please subscribe our channel for more videos.